So we were doing the human eye part and we were doing the atmospheric refraction. So we had to start with atmospheric refraction. So we studied one of the natural phenomena, how does a rainbow occur? And then we had done refraction through a prism and the ray diagram basically. So let us move ahead with atmospheric refraction. So atmospheric refraction means the cooler air layer of the atmosphere behaves as optically denser medium for light rays, whereas the warmer air layer of atmosphere behave as optically rarer medium for light rays. So basically जो cooler air layer है, temperature के हिसाब से optical density change करता है. So warmer air layer will be optically rarer medium and the cooler air layer will be optically denser medium. So as we move in the atmosphere, the temperature of different air layers will be different and hence the refractive index keeps on changing. So in the same atmosphere, we have air layers having different optical densities. ठीक है? तो जब लाइट रे सन से हमारे तक पहुंचती है या स्टार्स से हमारे तक जो लाइट रे पहुंचती है, तो वो डिफरेंट लेयर्स पे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटीज उसको रास्ते में अलग अलग डिफरेंट मिलेगी और उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से बेंडिंग जो है अलग अलग अमाउंट से होता है. So the refraction of light caused by the Earth's atmosphere having air layers of varying optical densities is called atmospheric refraction. So this phenomena, refraction of light caused by Earth's atmosphere having air layers of variable optical densities. So अलग-अलग optical densities है. तो मान लो rarer to denser जाएगा, तो it will bend towards the normal. अंदर की तरफ बेंड करेगा और डेंसर टू रेयर जा रहा हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो अलग अलग लेयर का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, उसकी वजह से उसकी जो बेंडिंग है लाइट स्ट्रेट नहीं पास करेगी, इट विल बेंड बाय सम अमाउंट. सो इफ वी लुक एट ऑब्जेक्ट्स थ्रू द हॉट एयर ओवर अ फायर, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी मूविंग स्लाइटली वाइड. सो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन is basically refraction of light when it passes from one layer of air to the other layer because of the change in the temperature of different layers. They have different optical densities and that's why the light will bend when it goes from one air layer to the other layer, and this is known as atmospheric refraction. तो पहले वाले पार्ट का जो क्वेश्चन बनेगा, जो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसमें ये तीनों पॉइंट को तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, राइट. दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, इज बिकॉज इसमें तो बस थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आता है और जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. या दूसरा क्वेश्चन, ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया. दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इफ वी लुक at the objects through the hot air over fire, the object appears to be moving slightly. Yes, Laksh? Do you have any doubt, Laksh? No, sir. भाई साहब ये कौन लक्ष्य बच्चा है ये Sir, I think someone is using my name to join the class. Someone is using your name to join the class. Who will try to join the class? Sir, I don't know. There was one more Lux. He just left right now. Why does it happen in your batch only? Such amazing things. Anyways, so चलो फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, इधर उधर की चीज़ों पे फोकस मत करो. फोकस इधर उधर जाएगा तो तुम्हारा जो है इंटरेस्ट भी थोड़ा कम होता रहेगा पढ़ाई में, है ना. रेस्पेक्ट है मेरे लिए, उसको रेस्पेक्ट को मेंटेन करो और पढ़ाई पे ध्यान दो. नहीं तो फिर गाली भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना. गाली दोगे तो फिर उसके बाद फिर मार्क्स भी तुम्हें उसी तरह के आएंगे एग्जाम में. इस बात की तैयारी कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है. तो ये तो सब तुम्हारे ऊपर है, तुमको क्या करना है.
हम रेस्पेक्ट कमांड नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे मन में होगा रेस्पेक्ट तो करोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे। चलिए पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। और अपना जो है ना, प्लीज माइक्रोफोन्स म्यूट करके रखें, जिससे कि बाकियों को डिस्टरबेंस नहीं हो। So if we look at objects through hot air over fire, the objects appear. Okay, so if we look at objects through the hot air, so what I'll do, I'll disable the waiting room. So जिसको भी जो भी अभी गलती से अगर लॉग आउट होता है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको एंटर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके बच्चों, so if we look at objects through the hot air over a fire, the object appears to move slightly. Why? तो क्या होता है कि जब भी हम लोग बॉन फायर वगैरह करते हैं, मान लो किसी कहीं पे जाते हैं, किसी रिजॉर्ट वगैरह में, तो जनरली वहाँ पे हम लोग बॉन फायर वगैरह करते हैं। तो जब आप बॉन फायर करोगे तो उसमें जो 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 फायर के वजह से जो उसके ऊपर जो एयर लेयर है वो क्या हो जाएगा, वो हॉट एयर हो जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो जो लेयर्स है वो ठंडा होगा। तो बेसिकली जो जस्ट ऊपर फायर के जो लेयर होता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और होगा, इस लेयर का ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और होगा। उसी तरह जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कूलर लेयर है ना, कूलर लेयर ऑप्टिकली डेंस होगा और जो हॉट लेयर है ऑप्टिकली रेयरर होगा। लेट से हम लोग इस तरफ खड़े हैं बॉन फायर के, और हमारे ऑपोजिट साइड जो लोग खड़े हैं उनका इमेज हमें थोड़ा फ्लिकर करता हुआ दिखता है। हैव यू ऑब्जर्व दिस? जो लोग उस तरफ रहते हैं वो थोड़े हिलते हुए दिखते हैं, Yes, sir. है ना? तो वो क्यों होता है कि लाइट, जब हम लोग किसी चीज को देख क्यों पाते हैं, मतलब लाइट उसके ऊपर पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक आती है तो हम लोग उसको देख पाते हैं। अब जो लाइट इधर से आएगा इधर, तो अब ये अलग अलग लेयर्स के वजह से अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, और ये भी क्या है कि फिक्स्ड नहीं है कि इतने से इतने दूर तक यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हर मोमेंट चेंज करेगा। टेम्परेचर हर मोमेंट, मान लो कभी विंड ब्लो कर रहा है तो उसके वजह से देयर कैन बी ए शिफ्ट इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, है ना? टेम्परेचर थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है हर लेयर का, तो वो टेम्परेचर चेंज करेगा और उसके वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हर लेयर का चेंज करेगा, और दैट विल बी डायनेमिक। तो वो जो टेम्परेचर चेंज करता है एयर लेयर का, है ना, उस चेंज इन टेम्परेचर के वजह से, राइट, बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन टेम्परेचर you will observe, you know, the person on the other side. So you will observe the person on the other side to be, you know, shaking a bit. ठीक है? तो वो जो हिलती हुई इमेज हमें दिखती है वो that is because of this atmospheric refraction and dynamic atmospheric refraction which keeps on changing with time. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो यही चीज यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो अगर आप पढ़ो, the air just above the fire becomes hotter than the air further up, right? So this hotter air is optically rarer, but the colder air further up is optically denser. So when we see the objects by the light coming from them through hot and cold air layers
having different optical densities, then refraction of light takes place randomly, due to which the object appears to be moving slightly. ठीक है? Now, the air in the upper atmosphere is optically rarer. As we come down, the air in the lower atmosphere is optically denser. तो जैसे जैसे upper atmosphere में, because it is nearer to the sun, right? So ये optically rarer होगा, temperature ज़्यादा होगा. और जैसे जैसे नीचे आएंगे, air in the lower atmosphere, the optical density is higher. So air in the lower atmosphere is optically denser. So rarer to denser medium में जब आता है, तो it bends towards the normal. Light ray bends towards the normal. इसीलिए light जब ऊपर से नीचे आएगा, तो it will bend towards the normal like this. It will not go straight, but it will eventually bend like this. Right? Some of the optical phenomena in nature which occur due to the atmospheric refraction of light are as follows. So there are certain optical phenomena in nature which occur because of the atmospheric refraction. So we'll see one by one these optical phenomena and learn about the reasons of that, why it is happening. So obviously optical refraction, atmospheric refraction reason होता है, but थोड़ा explain करके answers को लिखना पड़ेगा. सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. तो क्वेश्चन आपके पास तीसरा क्वेश्चन आ गया कि व्हाई डज स्टार ट्विंकल. ठीक है, सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, राइट. सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में सबसे पहले आएगा व्हाई डज स्टार ट्विंकल एट नाइट. तो होता क्या है, जो लाइट रे है जो स्टार से आ रहा है, लेट्स से वी एज एन ऑब्जर्वर आर ऑन द ग्राउंड, और जो लाइट रे किसी मोमेंट पे लाइट रे जो इस पे आएगा, मैंने क्या बोला कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डायनेमिकली चेंज करता है, टाइम के साथ चेंज करेगा. तो कोई जरूरी नहीं है कि जितने अमाउंट से बेंड कर रहा है एक मोमेंट ऑफ टाइम पे, दूसरे मोमेंट ऑफ टाइम पे भी सेम अमाउंट से बेंड करे. हो सकता है कम बेंड करे या फिर ज्यादा बेंड कर जाए लाइट रे. तो लाइट रे एग्जैक्टली उसके आईज तक जो पड़ेगा, वो हो सकता है एक मोमेंट पे लाइट बिल्कुल ब्राइट उसके लाइट आईज पे आए, मतलब बहुत सारा लाइट उसके आईज पे रिफ्रैक्ट करके पहुंचे, और दूसरे मोमेंट पे हो सकता है कम लाइट उसके आईज पे पहुंचे. यही वजह है जो लाइट कभी तुमको जो स्टार में कभी ब्राइट दिखता है और कभी डिम दिखता है ना. ब्राइट और डिम ये जो ऑल्टरनेटली होते रहता है, जिसके वजह से हम लोग कहते हैं कि स्टार्स आर ट्विंकलिंग एट नाइट. So when light coming from star enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction due to varying optical densities of air at various altitudes. अलग अलग एल्टीट्यूड पे ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, जिसके वजह से लाइट बेंड कर जाएगा, राइट. The continuously changing atmosphere refracts the light from star by different amount from one moment to the next. Because this atmosphere, the atmosphere is not constant, it's not fixed for a particular time. During the time duration, you will find the atmosphere changing. It is dynamically changing. कहीं पे कभी temperature ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, और वो हर moment of time पे change हो रहा होगा. So because of that, you will find that the refractive index also changes dynamically. So when the atmosphere refracts more starlight towards us, so when the refraction is in such a way that more light is being refracted towards our eyes, the star appears to be bright. And when the atmosphere refracts less starlight, then the star appears to be dim. So in this way, the starlight reaching our eyes increases and decreases continuously due to atmospheric refraction, and the star appears to twinkle at night. Is it clear to everyone? Yes, sir. So because of atmospheric refraction not being constant, being dynamic, so every moment of time the light which reaches our eyes, the intensity of light which reaches our eyes, that changes continuously. So when more light falls on our eyes, we see the star to be brighter, and when less light falls on our eyes, we see the star to be dim.
and then that's why because of the change in intensity of light with time, the star appears to be twinkling. क्लियर है सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है? So this is what I was explaining. Why do stars twinkle? So you can see that, you know, on different layers you will find it because the refractive index changes in different layer. Atmospheric refraction की वजह से light keeps on, you know, changing. So because the light changes its direction, the star appears to be twinkling at night. Now the next question is, why do planets do not twinkle at night? तो भाई स्टार तो ट्विंकल करता है, प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है? तो उसका रीजन अगर हम लोग को ढूंढना होगा तो स्टार, बिकॉज इट इज फार अवे, राइट, बिकॉज द स्टार इज फार अवे, इट एक्ट्स एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. तो उस पॉइंट सोर्स से कभी एक इस मोमेंट पे आएगा, कभी इधर नहीं आएगा, कभी दूसरी तरफ जाएगा. तो बिकॉज ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो एक ही लाइट रे को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, है ना. और अगर बिकॉज प्लैनेट्स आर नियरर टू अस, सो दैट्स व्हाई इट अकर्स एज, बिकॉज द साइज ऑफ द प्लैनेट इज मोर, वहां पे कई सारे पॉइंट सोर्स होंगे जो प्लैनेट के हम लोगों को लाइट रेज वहां पर से दिखते हैं. तो देयर आर मेनी यू नो पॉइंट सोर्सेस which together sends light to us. So now when as an observer we are here, एक लाइट रे, एक पॉइंट से लाइट रे आया, दूसरे पॉइंट ऑफ से लाइट इधर चला गया, तीसरे से इधर चला गया, बाद में फिर दूसरे मोमेंट ऑफ टाइम में ये जो तीसरा वाला लाइट था ये इस तक पहुंच जाएगा, दूसरा वाला कुछ इधर हो गया. तो हर मोमेंट ऑफ टाइम पे जितने लाइट उसके पास पहुंचता है वो कांस्टेंट रहता है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट प्रेजेंट इन प्लैनेट. And why is it so that there are multiple sources of light? Because of the size, because the planet, as it is nearer, it appears to be bigger in size, and because it is bigger in size, it will have different point sources of light lying on it, and those point sources of light will you know, send equal amount of light to the observer every moment of time. Okay, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. इसीलिए Yes, प्लैनेट ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता है. प्लैनेट appears to be, you know, stagnant. So the continuously changing atmosphere is able to cause variations in the light coming from the point size star, because of which the star appears to be twinkling. But the continuously changing atmosphere is unable to cause variations in the light coming from a big sized planet, a collection of a very large number of point sources of light, because the planet comprises of many point sources of light, because of which the planet does not twinkle at all. So at any moment of time, the light which reaches us is constant in intensity, and that's why it does not appear to be twinkling. क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, व्हाई डू प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल एट नाइट, और व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल एट नाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर. This again is because of atmospheric refraction. So what happens when, let's say, a light ray is coming from the star, so because ये इसको straight जाना था light ray, but ये bend करके यहाँ आ जाता, तो bend करके यहाँ पे पहुंच जा रहा है light ray, तो इसको जब straight हम लोग पीछे की तरफ extend करते हैं तो यही light, it appears to be coming from this place. So that means the star which is actually present here, it appears to be at a greater height somewhere here. So this is the apparent position and this is the real position. Okay? So this is the real position and this is the apparent position. So to an observer, the star will appear to be here at an apparent position, and hence it appears to be at a higher position. So वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, the star seems higher than they actually are. क्यों होता है? Air higher up in the sky is rarer, but that nearer the Earth's surface is denser.
So as the light moves from a light, as the light comes from a light from a star comes down, the dense air bends the light more, है ना? Rarer to denser आएगा तो it will bend towards the normal, so it will bend more, and that's why due to this refraction of light, due to this refraction of star's light, the star appears to be at a higher position. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So this is the apparent position basically. Now advanced sunrise and delayed sunset. So the sun is visible to us 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset. तो हम लोगों को सन जो है 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है. ऐसा क्यों होता है? This is another question which is being quite often asked, that why do we see sun 2 minutes before the actual sunrise and why do we keep on seeing the sun 2 minutes after the actual sunset? ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, लाइट रे जो जब सन यहाँ पे होराइजन के नीचे ही है इस पोजीशन पे, तो लाइट रे को यहाँ पर से स्ट्रेट ऐसे निकल जाना चाहिए था, राइट? लाइट रे शुड हैव गॉन स्ट्रेट इन दिस डायरेक्शन, बट व्हेन इट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर it will bend towards the, it will bend a bit. Why? Because light when goes from rarer to denser it will bend towards the normal, so it will bend towards the earth थोड़ा सा. तो जिसके वजह से जो लाइट रे को स्ट्रेट चले जाना चाहिए था वो अब ऑब्जर्वर को दिखने लगेगा यहाँ पे, है ना? इवन दो द सन इज बिलो द होराइजन, द ऑब्जर्वर स्टार्ट्स सीइंग इट. दैट इज बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. और इसी वजह से तो ऑब्जर्वर को वो सन उस समय कहाँ दिख रहा होगा? इसको अगर यहाँ पर टेंजेंट बना लो तो ये ऑब्जर्वर को सन का पोजीशन यहाँ पे दिख रहा होगा. तो जब सन एक्चुअली यहाँ पे था, ये एक्चुअल पोजीशन है और ये एपरेंट पोजीशन है. सो सन जब एक्चुअली होराइजन के नीचे था तो apparently वो सन अब होराइजन के ऊपर दिखता है. एंड दिस इज द रीजन ऑफ द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. सनसेट के समय भी यही होगा. सनसेट के समय की इवन दो सन सेट हो गया है तब भी हमें सन दिखता रहेगा. सो सन इज विजिबल टू अस 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज and about 2 minutes after the actual sunset because of the atmospheric refraction. So when the sun is slightly below the horizon, then the sun's light coming from the less dense air to more dense air is refracted downward as it passes through the atmosphere. So because of this atmospheric refraction, the sun appears to be raised slightly above the horizon when actually it is slightly below the horizon. So the apparent flattening of sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomenon. तो flattening of sun's disk मतलब जब sunrise और sunset होता है ना तो उस समय sun तुमको बड़ा दिखेगा, है ना? जब sunset हो रहा होता है तो बड़ा सा गोला हमें ऑरेंज कलर का दिखता है. बट एक्चुअली जब सन ऊपर चला जाता है तो तुम देखोगे कि वही मतलब it is more compact. It doesn't seem to be that big when it is that big a size which it is while sunrise and sunset. That flattening of sun's disk is again because of atmospheric refraction. Same reason. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन गया कि जो सन जो है हमें सन का जो डायमीटर बड़ा क्यों दिखता है, मतलब सन appears to be bigger while it is while the sun during the sunrise and sunset. That is because again due to atmospheric refraction. तो reason same हम लोग लिखेंगे. Now scattering of light. So light is scattered when it falls on various
when it falls on various types of suspended particles in its path. So, which is known as Tyndall effect basically. The scattering of light by particles in its path is called Tyndall effect. तो basically कोई hole है या किसी रूम में एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ से सन रे एंटर कर रहा है डार्क रूम में, तो हम लोगों को पूरा उस पूरे पाथ में, वो पाथ हमें विजिबल क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, उन डस्ट पार्टिकल पे जब सन के रेज पड़ते हैं तो वो सन रेज जो है स्कैटर करता है. बिकॉज सन रेज स्कैटर करता है तो उसके वजह से जो वो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स पूरे बिल्कुल चमकते हुए दिखेंगे, तो जिसके वजह से वो पूरा पाथ हमें विजिबल होता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. और ये जो इफेक्ट है जिसकी वजह से हमें पूरा पाथ जो दिखता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है. तो बेसिकली फॉरेस्ट वगैरह में भी तुम नोटिस करोगे कि डीप फॉरेस्ट में जब जाते हैं तो कहीं कहीं पे हम लोगों को वो सन रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे स्ट्रीक्स दिखते हैं, है ना. नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स वगैरह में हम लोग को दिखता है, या फिर जंगल बुक वाला मूवी देखते तो उसमें दिखता था हम लोग को. वो इसीलिए क्योंकि अगेन बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट. तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स जो है सन रेज को स्कैटर करता है और जिसकी वजह से हमें वो पूरा पाथ दिखता है. वो पार्टिकल शाइन करने लगता है और उसकी वजह से पूरा पाथ हमको लाइट रे का दिख रहा होता है. क्लियर है बच्चों टिंडल इफेक्ट क्या है? यस सर. Now the color of scattered light depends on the size of the scattering particle. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जो स्कैटर्ड लाइट है उसका कलर किस पे डिपेंड करेगा? उस स्कैटरिंग पार्टिकल, जिस पार्टिकल से लाइट स्कैटर कर रहा है उसके साइज पे डिपेंड करता है कि जो लाइट स्कैटर कर रहा है वो किस कलर का हो. So dust particles and water droplets suspended in the atmosphere are much larger than the wavelength range of visible light. The different colors of white light are reflected by dust and water particles in the same way. Due to this, the scattered light appears white. तो बेसिकली क्या है, हम लोगों को जो पाथ दिखता है ना, डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट जो एयर में सस्पेंडेड है, वो ना इक्वल अमाउंट से हर कलर ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा. बिकॉज इक्वल अमाउंट से हर कलर ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा, सारे कलर्स ऑफ लाइट मिलके क्या बनाते हैं? व्हाइट कलर बनाता है. तो इसीलिए हमें व्हाइट कलर का वो लाइट दिखता है. ठीक है. Air molecules such as nitrogen and oxygen gas molecule present in the atmosphere are smaller than the wavelength range of visible light. The lower wavelength light, blue, are scattered much more than, blue is scattered much more by the air molecule, but the higher wavelength light, red, are scattered much less. तो basically blue सबसे ज़्यादा scatter करता है. ठीक है. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red विबग्योर होता है. तो जो हायर वेवलेंथ वाले हैं, रेड वाला, वो कम स्कैटर करेगा, और जो लोअर वेवलेंथ है मतलब इंडिगो, ब्लू, इस तरह के जो कलर्स हैं वो ज्यादा स्कैटर करता है. और बिकॉज ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर करता है और इसी वजह से हम लोगों को स्काई ब्लू कलर का दिखता है. ठीक है. सो द एयर मॉलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो है विजिबल लाइट, इसके जो ये जो लाइट जो स्कैटर करेगा, वेवलेंथ रेंज ऑफ जो लाइट है उससे कम जो लेसर वेवलेंथ वाले हैं उनको ज्यादा स्कैटर करता है. बिकॉज ये एयर मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स लोअर वेवलेंथ वाले लाइट को ज्यादा स्कैटर करेगा. लोअर वेवलेंथ मतलब ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, इनको ज्यादा स्कैटर करता है, जिसके वजह से जो पूरा स्काई है हमें ब्लू कलर का दिखता है. क्योंकि लाइट क्या है, सन रेज से बाहर से आ रहा है एटमॉस्फेयर में, तो बाहर जब अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा तो वहां पे वो सन रे जो है, ये जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो क्या करेगा, ब्लू कलर के पूरे लाइट को स्कैटर कर देगा. स्कैटर कर देगा तो हमें क्या दिखेगा, अगर नीचे से हम देखेंगे तो हमें पूरा स्काई ब्लू कलर का दिखता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट विच इज हैपनिंग. और रेड कलर जो है कम, सबसे कम स्कैटर करता है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So this is another question which is quite often asked, that why the sky is blue, why the sky appears blue. So reason अभी मैंने बता ही दिया तुम लोगों को. The molecules of air and other fine particles in the atmosphere
have size smaller than the wavelength of visible light. So these are more effective in scattering light of shorter wavelength at the blue end than light of longer wavelength at the red end. तो जो blue end वाले light है वो ज़्यादा scatter करेगा as compared to red end वाला जो wavelength है. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color shorter wavelength more strongly than red. The scattered blue light enters our eyes. The scattering of blue component of the white light by air molecules present in the atmosphere causes the blue color of the sky. Because blue color is scattered more, we are able to see only blue color, and that's why the sky appears to be blue. If the earth had no atmosphere, अगर earth में कोई भी atmosphere नहीं होता, consisting of air, there would have been no scattering of sunlight at all. In that case, no light from the sky would have entered our eye. भाई light scatter ही नहीं होगा तो light हमारे eyes तक पहुंचेगा भी नहीं, और इसके वजह से जो outer space है हम लोगों को dark दिखेगा. तो यही वजह है कि because हम लोग जब outer space में जाते हैं तो वहाँ पे पूरा sky मतलब सब कुछ डार्क दिखता है. दैट इज बिकॉज वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है. एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइट भी स्कैटर नहीं होता है और हमारे आईज तक नहीं पहुंचता है. इज इट क्लियर? So that's what is mentioned here as well. So if the earth had no atmosphere, consisting of air, there would have been no scattering of sunlight at all. In that case, no light from the sky would have entered our eyes and the sky would have looked dark and black to us. So this is the reason why in outer space the sky looks dark and black inside instead of blue. ठीक है. तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मून पे हम लोगों को मून से स्काई ब्लू क्यों नहीं दिखता है? वो इसलिए नहीं दिखता है बिकॉज वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है. Now, why are danger signal lights red in color? तो हम लोग जो रेड कलर का डेंजर सिग्नल लाइट यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर होता है. तो बिकॉज ये लीस्ट स्कैटर होगा, दूर से भी हमें दिख जाएगा. अगर कोई लाइट, मान लो रेड लाइट, कोई ट्रेन जा रहा है और जा रही है और फॉग जो है बहुत ज्यादा है, राइट? तो फॉग बहुत ज्यादा है तो बाकी सारे कलर्स ऑफ लाइट जो है वो स्कैटर कर जाएगा, तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा. बट ट्रेन के ड्राइवर को रेड कलर का लाइट जरूर दिख जाएगा क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर करता है. तो स्कैटर कम करेगा तो रेड लाइट उसके आईज तक पहुंच जाएगा और उसके वजह से वो डेंजर सिग्नल को देख पाएगा. और यही रीजन है कि हम लोग जितने भी डेंजर सिग्नल्स जहां भी यूज करते हैं रेड कलर का यूज करते हैं. सो व्हाई आर डेंजर सिग्नल्स लाइट्स रेड इन कलर? This is because the red colored light having longer wavelength is the least scattered by fog or smoke particles. Due to this, red light can be seen in the same color even from a distance. So because red light is the least scattered, it can be seen even from a distance, and that's why all the danger signals uses red as its color. Clear, बच्चों? Yes, sir. Now, why the sun appears red at sunrise and sunset? तो आपने नोटिस किया होगा सनराइज और सनसेट के समय हमको सूरज जो है रेड कलर का दिखता है, मतलब ऑरेंज कलर का, रेडिश ऑरेंज टाइप का, सिंदूरी रंग जिसको कहते हैं. So at the time of sunrise and sunset, when the sun is near the horizon, the sunlight has to travel the greatest distance through the atmosphere to reach us. So during this long journey of sunlight, most of the shorter wavelength, that is blue color, present in it is scattered out and away from our line of sight. So the light reaching us directly from the rising sun or setting sun consists mainly of longer wavelengths, red color, due to which the sun appears red. ठीक है. So आप ये देखो कि जब सनराइज और सनसेट के समय
सन जब होराइजन से आएगा, तो सनलाइट जब आएगा, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में कवर कर रहा है, ये लार्जर डिस्टेंस कवर कर रहा है ना. दिस इज द डिस्टेंस विच इट इज कवरिंग इन द एटमॉस्फेयर. और जब दोपहर में, आफ्टरनून में सन रेज, जब लाइट रेज आएंगे, तो दिस इज द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द सन, right? Now, if you notice, the distance d2 is much less than the distance d1. Okay, so distance d1 is much less than, much larger than d2, because ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एटमॉस्फेयर में, तो जितने कलर्स हैं वो सारे कलर्स क्या होंगे, स्कैटर हो जाएगा, क्योंकि जितने टाइम तक वो एटमॉस्फेयर में रहेगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसका किसी और पार्टिकल से टकराने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसका इंक्रीज कर जाता है. बिकॉज प्रोबेबिलिटी उसका इंक्रीज कर जाएगा ज्यादा स्कैटर करने का, तो ऑल अदर कलर्स विल गेट स्कैटर्ड. ओनली red colors, only the red colored light reaches our eyes, and that's why the sun appears to be red in color during sunrise and sunset. Is it clear? Yes, sir. So that's what is written here. Okay. So at the time of sunrise and sunset, when the sun is near the horizon, the sunlight has to travel the greatest distance through the atmosphere to reach us. During this long journey of sunlight, most of the shorter wavelength, that is blue color present in it, is scattered out and away from our line of sight. So the light reaching us directly from the rising sun or setting sun consists mainly of longer wavelength red color, due to which the sun appears red. Now, however, light from the sun overhead would travel relatively shorter distance. At noon, the sun appears white as only a little of the blue and violet colors are scattered. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So ये इतना ही है इसमें. Okay. तुम लोग को कोई क्वेश्चन है तो you can ask me those questions. आफ्टर में आई से रिलेटेड कुछ था ही नहीं. नहीं तो इसीलिए तो वो तो रिमूव हो गया ना सिलेबस से. साइड इफेक्ट्स चले गए सर. But starting the part here as in how the eye works. No, nothing is there. Eye So no, but my school teacher told us that only the defects are out, but how the eye works is still there. The eye work was not there पहले से ही सिलेबस में, है ना. But Okay, sir. वो डिफेक्ट ही था जो सिलेबस में था. मतलब if you want to do that human eye part, I can do it. चलो ह्यूमन आई वाला पोर्शन कर लेते हैं, डिफेक्ट को छोड़ देंगे. सर जिन लोगों को लाइक अभी 11th में फिजिक्स नहीं लेनी, वो नहीं पढ़ेंगे ये तो चलेगा ना? क्या चीज? ह्यूमन आई वाला पार्ट. नहीं, अब देखो कंफ्यूजन है ना. मेरे हिसाब से तो ह्यूमन आई पूरा ही हट गया है. Now she is saying that her school teacher has said कि only the defect has been removed. सर हमारे में भी यही है, मेरे स्कूल के अंदर भी यही था. ओनली डिफेक्ट्स आर रिमूव्ड. सर एक बार है ना सर, मेरे को लग रहा है ये सिलेबस फिर से चेक करना पड़ेगा. नहीं, अभी तो खैर सिलेबस फिर से चेंज होके आएगा ही. एंड डोंट ये अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुको, है ना. फिर से चेक करना पड़ेगा अभी लेट मी स्टार्ट दैट ह्यूमन आई वाला पार्ट. जस्ट गिव मी सम मोमेंट ऑफ टाइम. ओके.
Are you guys able to see this? Yes, sir. Yes, sir. So if you see this, देखो ये ह्यूमन आई है. ह्यूमन आई का ये डायग्राम बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है, लेबल करना भी और बनाना भी. तो सबसे जो बाहर वाला पोर्शन है, इफ यू सी द आउटर मोस्ट पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस इज बेसिकली नोन एज कॉर्निया. ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, बेसिकली हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है. जो सबसे बाहर वाला लेयर है, इट प्रोटेक्ट्स आवर आईज, ओके, फ्रॉम ऑल द डस्ट एंड एवरीथिंग, यू नो, ऑल एक्सटर्नल एजेंसीज से प्रोटेक्ट करता है, जो सबसे आउटर लेयर. दिस इज कॉल्ड कॉर्निया. कॉर्निया के अंदर फिर यू विल फाइंड दिस होल यू नो टिश्यूज विच आर देयर. उसमें ये एक जो पोर्शन है, जो कॉर्निया और आई लेंस, दिस इज द आई लेंस बेसिकली. सो एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है बेसिकली, और ये बेसिकली जैसे कन्वेक्स लेंस के शेप का है, दिख रहा होगा आपको कन्वेक्स लेंस के शेप का, राइट. और इसके ऊपर ये दो मसल्स लगे हुए, ये सीलियरी मसल्स कहलाते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ. ये सीलियरी मसल्स इस लेंस को होल्ड करके रखता है. तो सीलियरी मसल्स जब ये अपना पोजीशन चेंज करेगा, मतलब जब ये स्ट्रेच करेगा, राइट, जब ये रिलैक्स करेगा, तब ये, सो व्हेन इट रिलैक्सेस, तब ये जो लेंस जो है बिल्कुल थिक हो जाएगा. और जब ये स्ट्रेच करेगा तो ये जो लेंस है बिल्कुल पतला हो जाएगा. उसके आगे ये जो रीजन है, इसके थ्रू जो है लाइट अंदर आता है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो जगह है उसके थ्रू. ये जो ऊपर से एक ये लेयर लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं, दिस लेयर, दिस होल थिंग विच आई एम कवरिंग, दिस इज बेसिकली नोन एज आइरिस. तो एक शटर टाइप का होता है, इस तरह से एक शटर है, ठीक है. अब ये आइरिस जब एक्सपैंड करता है तो प्यूपिल क्या होगा, छोटा हो जाएगा. और जब आइरिस रिलैक्स करेगा, राइट, तो उस समय प्यूपिल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, राइट. सो बेसिकली आइरिस जो है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है. सो बेसिकली तुमको ये तो साइड प्रोफाइल दिख रहा है, एक्चुअली में तुम देखोगे तो हमारे आईज के अंदर सब जो आई बॉल है पूरा व्हाइट कलर का दिखता है, उसमें एक डार्क कलर का पोर्शन है, और उसके अंदर एकदम सेंटर पे तुम देखोगे कि एकदम डार्क बिल्कुल ब्लैक कलर का पोर्शन है, राइट. और उसके चारों तरफ ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन टाइप का या फिर ग्रेइश टाइप का पोर्शन होता है, और बाकी ये व्हाइट पोर्शन. तो ये जो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज आइरिस, द डार्क ब्राउन पोर्शन. एंड द एकदम डार्क वाला जो पोर्शन है, बिल्कुल जेट ब्लैक जो है, दैट इज प्यूपिल. सो जेट ब्लैक इसीलिए क्योंकि वो सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है. कोई भी चीज ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि वो सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन पूरा डार्क ब्लैक दिखेगा. यहाँ से यहाँ तक वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये तुमको ग्रेइश कलर का दिखेगा, और उसके बाद जो ये सब जो पोर्शन है, ये सब व्हाइट कलर का दिखेगा. क्लियर है बच्चों? तो आइरिस क्या करता है, आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू द प्यूपिल, ओके. और होता क्या है, जब हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो हमें ज्यादा लाइट चाहिए, क्योंकि कम लाइट है बाहर, तो ज्यादा लाइट चाहिए, तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है. प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा लाइट आ सकेगा, राइट. और ये जो चेंज होता है आइरिस और प्यूपिल का साइज, जो कंट्रोल करता है आइरिस प्यूपिल के साइज को, उसको होने में थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स सम टाइम. तो इसीलिए जब अचानक से धूप से अंदर आते हैं, है ना, जब हम लोग सन बेदिंग करके जब वापस बाहर से अंदर आते हैं, तो देखते हैं कि अंदर कुछ रूम में दिखाई ही नहीं पड़ रहा है. दैट इज बिकॉज कि जो प्यूपिल है, बाहर जब हम लोग काफी ज्यादा रोशनी में गए तो प्यूपिल का साइज बहुत छोटा हो गया, क्योंकि बाहर बहुत रोशनी है, हमारे आईज के लिए इट कैन बी डेंजरस. सो प्यूपिल उतना ही लाइट को अलाउ करेगा जितना कि हमारे लाइट को जरूरत है, तो इसीलिए प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है. जब हम अंदर रूम में आते हैं तो प्यूपिल के साइज को वापस बड़े होने में थोड़ा टाइम लगता है, और इसी वजह से थोड़ी देर तक हमें कुछ नहीं दिखता. मूवी हॉल में जब मूवी शुरू हो जाता है तो शुरू में जाते हैं तो 2-4 को तो टक्कर मार के पहुंचते ही है, मतलब एक दूसरे के पाँव पे किसी के चढ़ गए, है ना, एक्सक्यूज मी कह के सॉरी बोल के पहुंचते हैं. बाद में दिखते हैं अंकल जी जो कि गाली दिए थे चढ़ने समय, राइट.
तो वो अंकल जी का चेहरा थोड़ी देर बाद दिखता है, वो दैट इज बिकॉज द साइज ऑफ द प्यूपिल टेक्स सम टाइम टू एडजस्ट। नहीं, ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ जीवन में कभी? Yes, sir. मेरे साथ तो बहुत हुआ है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद आइरिस और प्यूपिल के साथ। अब ये जो देखो लेंस, यहाँ पे जो है लेंस और उसके कॉर्निया के बीच का जो ये पोर्शन है जो हम शेड कर रहे हैं, ये पोर्शन कहलाता है एक्वस ह्यूमर। इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, वो लिक्विड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हेल्प करता है बेसिकली, एक्वस ह्यूमर। सो दिस इज नोन एज एक्वस ह्यूमर, this portion, right? And the portion which is there from the retina to the lens, ये जो portion है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें जो लिक्विड भरा होता है उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और ये जो रेटिना है ये पूरा स्क्रीन है तुम्हारा, जिसपे कि तुमको मूवी चलता है, तुम्हारे जो बाहर तुमको दिख रहा है ना, वो जो मूवी तुम्हारे आईज के अंदर चलेगा वो इसी स्क्रीन पे चलेगा। तो लाइट यहाँ से जो पैरेलल लाइट रे आ रहा है वो रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे एक इमेज बनाएगा, कहीं पे भी इन सब जगहों पे इमेज बनाता है जिससे हम लोगों को ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है, ये जो जहां से ऑप्टिकल नर्व्स बाहर जा रही हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स जो बाहर जाती हैं उस पोर्शन को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे एक्चुअली इमेज नहीं बनता, इतना सा जो पोर्शन है इस पे कोई इमेज नहीं बनता, ठीक है, दिस इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। तो ये जो सिग्नल्स बेसिकली क्या है कि ये जो लाइट आएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस पे फॉल करेगा रेटिना पे, रेटिना उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कहाँ पे पास करेगा, हमारे ब्रेन तक पास करेगा, और वो कौन कैरी करता है, ऑप्टिक नर्व्स कैरी करता है। सो ऑप्टिक नर्व्स उसको ब्रेन तक कैरी करता है और ब्रेन उसको फिर से इंटरप्रेट करता है। अच्छा, एक और खास बात ये है कि रेटिना जो है, जितना जो भी इमेज रेटिना पे बनेगा, बिकॉज रियल इमेज स्क्रीन पे कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है, एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। सो व्हाटएवर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द आईज रेटिना दैट इज इन्वर्टेड। तो ब्रेन क्या करता है, जो ऑप्टिक नर्व्स ये सिग्नल को लेके जाएगा, ब्रेन उसको वापस उल्टा करता है और तब इंटरप्रेट करता है। तो बिफोर इंटरप्रिटेशन ब्रेन डज अ इन्वर्जन ऑफ image again, and that's how we are able to see. Otherwise हमको सब चीज उल्टा ही दिखता, हम लोगों को आदमी उल्टा चलता हुआ, सर पे चलता हुआ आता हुआ दिखता है ना, और बहुत सारी चीजें होती, राइट? सबको समझ में आया? बेसिक चीज सब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा डिटेल में हम अगली क्लास में भी करेंगे। आई डिडंट नो दैट दिस इज देयर इन सिलेबस, सो आई डिडंट प्रिपेयर द स्लाइड्स, बट या नोट्स से हम लोग कर लेते हैं, अगली क्लास में दोबारा एक बार कर लेंगे। ओके, सो ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा। व्हाई डज इट बिहेव लाइक ए कैमरा, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तुम बोलोगे कि भाई आगे एक आइरिस और प्यूपिल अरेंजमेंट है जो कि शटर के तरह काम करता है, और जैसे कैमरा में स्क्रीन, जो कैमरा पे जो हम लोग कोई भी फोटो को कैप्चर करते हैं पीछे जो स्क्रीन पे, वो सेम चीज यहाँ पे रेटिना पे वो इमेज कैप्चर होता है। यही सारी चीज कहानी तुमको बतानी होती है। नाउ सेकंड, द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली spherical in shape with a diameter about 2.3 centimeter. Its lens system forms an image on a light sensitive screen called retina. तो ये जो स्क्रीन पीछे की तरफ हमने बोला था, ये रेटिना है। Light enters the eyes through a thin membrane. Light enters through a thin membrane at the front part called the cornea. Cornea is the protective layer. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. तो प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, ये आइरिस कंट्रोल करता है, ठीक है। प्यूपिल इज अ होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस। आइरिस के बीच में एक होल है, राइट। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ साइज एंटरिंग द आई, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो प्यूपिल का साइज कम होगा तो कम लाइट पास करेगा, तो जब हम धूप में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज कम हो जाता है, और प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं, वहां पे ज्यादा लाइट चाहिए हम लोगों को देखने के लिए। The pupil appears black because no light is reflected from it. All the light gets absorbed, and that's why it appears to be black. The adjustment of the size of the pupil takes some time, and that's why
the moment we enter a dark room from a well lighted room, we are not able to see things clearly. Then the eye lens is a convex lens made of a transparent, soft and flexible material like a jelly made of protein, which can change shape. और कौन उसका शेप चेंज करता है? सीलियरी मसल्स उसके शेप को चेंज करता है. तो भाई देखो क्या है, कितना जबरदस्त सिस्टम भगवान ने बनाया है. मतलब ये सोचो कि दूर की चीज और पास की चीज, यहाँ पे देखो एक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो फिक्स्ड है ना, ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, मतलब v जो है कांस्टेंट है. v कांस्टेंट है, इसका मतलब द इमेज डिस्टेंस इज कांस्टेंट, बट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कीप्स ऑन वेरिंग. तुम पास की चीज भी देख सकते हो, दूर की चीज भी देख सकते हो, यहाँ से 200 मीटर चीज भी देख सकते हो, और जो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है वो भी देख सकते हो. तो यू आर एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट. सो अब वो कैसे पॉसिबल है भाई? हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है लेंस का, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो भाई v को कर दिया तुमने फिक्स्ड, u चेंज कर रहा है, तो क्या चीज को चेंज करना पड़ेगा इसको इमेज बनाने के लिए? f को चेंज करना पड़ेगा हर मोमेंट ऑफ टाइम पे. f कैसे चेंज होगा? तो बिकॉज ये फ्लेक्सिबल है, इसके साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं. कभी स्ट्रेच कर दिया तो ऐसा बन गया, कभी इसको कंप्रेस कर दिया तो ऐसे गोल सा बन गया. तो इसके साइज को, आई लेंस के साइज को हम लोग सीलियरी मसल्स चेंज कर सकता है, जिसके वजह से हम दूर की ऑब्जेक्ट को भी आईज पे फोकस कर सकते हैं, रेटिना पे, और पास के ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर सकते हैं रेटिना पे. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. So that's why this eye lens is a convex lens which is made up of a transparent, soft and flexible material like a jelly made of protein, which can change the shape. The eye lens is held in a place by a ciliary muscle. The focal length of the eye lens is changed by changing its shape by the action of ciliary muscles. Eye lens forms an inverted real image of the object on the retina. So आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ह्यूमन आई वाला पोर्शन हम लोग मतलब मैं तुम्हें अच्छे से एक बार और करा दूंगा, और अगली क्लास में थोड़े क्वेश्चंस भी करेंगे. तो आप लोग थोड़ा तैयारी कर लीजिएगा. आधे घंटे का एक छोटा सा क्विज होगा, यही जो पढ़ाया है मैंने जितना ह्यूमन आई का पोर्शन, और जो उस दिन पढ़ाएंगे उस पे भी. तो हाफ एन आवर का क्विज होगा, तो पढ़ के रखिएगा. नहीं पढ़िएगा तो फिर जो क्विज में स्कोर करेंगे वो एकदम ग्रुप में डालेंगे कि कितना एकदम बेहतरीन नंबर लाया आपने. सर यस तो मतलब ये क्विज बस आई के ऊपर होगी या पूरे चैप्टर पे होगी ना सर? ना बस, हाँ आई के ऊपर और